श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, feels pleasure to introduce once again Dr. Pankaj Gupta with my audience. Because Dr. Pankaj is doing consultation and doing counseling with so many people. On our special request, he has promised to come regularly on every Monday to our studio, and we'll be sharing with him those particular things which are taking place in day-to-day life in our relations. So today we intend to take the topic that is children and parents relationship. Dr. I welcome you and thankful to you that you have spared time for us. And today Yash has also agreed to sit with us. He is representing Youth Age, so we would like to know his views as well. So I would request you to please introduce in details about your topic, about your subject. Okay, thank you, Dr. Sir. Thank you. It's my pleasure also to be here. Yeah. And hello Yash. So, as Dr. Gambhir has explained that I am now presently working in the field of counseling. Counseling primarily for me is a methodology to achieve happiness in life. Yes. Whatever we are doing, Okay. right? Whether we need a good health, Yes. or whether we need a good partner, or we need good money, or anything that we need in our life, we need it only for one emotion, that is happiness. Right. And whatever we are getting, whether we are in the spoiled relationship with parents, child relationship, husband-wife relationship, boyfriends and girlfriends, or it is health issues, Mm-hmm. or there are issues of past traumas, or any, the memories which we are not able to forget. Mm-hmm. All these things, we use the word depression, we use the word fear, we use the word guilt, or anything that we say. All these words, they just give one emotion, that is unhappiness. Right. So what I say is that counseling basically is a journey from unhappiness to happiness. Right. And then there are just names. If presently my unhappiness is, say, due to my parenting relationship, then I call it as a child-parent relationship counseling. G. If my unhappiness is primarily because of my partner, whether the partner is my wife, or it is like, if a young person who is not married and you are having boyfriend, girlfriend type of relationship. So if the reason of unhappiness is coming from that relationship, we call it as a relationship counseling. Right. Right. When the unhappiness is due to, say, anger issues, due to depression, due to stress, due to anxiety, then we give it exactly the same name. Right. तो मोटे तौर पर डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी बातचीत से समझ पाया, primarily since one individual comes in contact with other individuals, whether in the capacity of being father or parents, whether in the capacity of husband-wife relationship, or friends relationship, or interacting with society, I personally and strongly feel that while evaluating these relations, one has to understand his own temperament vis-a-vis the relationship in which he comes across. Say, being father, if I am not feeling happy with my children, I must evaluate my own personality as a father, then the personality and expectations that we have from our children, only then the proper solution can be found. Exactly. What do you say? Exactly. I fully agree to that. I just want to give an example. Ji. How do we behave in the present? Main issue, main concern is the interaction of two people in terms of their behavior. Yes. Right. Yes.
Now, how do we behave? Let's try to understand by a very simple, common example of life. जी जी. Let's say, imagine a situation where 4 friends are traveling in a car, Yeah. and another one comes, he overtakes in a very dominating, in a very rash manner. Yeah. Now, all of us, we have encountered the same experience, Mm-hmm. but the behavior might be different. Yeah. One person might think that 90% of the drivers here have no sense of driving. Right. So there is no point in spoiling your mood. Yes. So what he's doing is he's primarily ignoring the situation. Right. Other friend who is sitting in the same car, he has to open the window and shout. Mm-hmm. And Irrespect- he will abuse it. He will abuse also, but Yeah. irrespective of the fact that the person who has already gone ahead, Yeah. he is not listening what he is saying, Yeah. Yeah. but he has to show his anger. So his prime behavior is like anger. Right. Now the third example could be I have a client who comes from some place in UP. Ah. So he says, Dr. Saab, if someone tries to overtake me like this, Mm-hmm. whether I have to drive 50 kilometers extra, but I'll make sure that I'll overtake him. Okay. Right, which means a sense of competition. Now, Yes. it is a different emotion. Ah. This person is neither angry, Ah. this person is neither avoiding. Ah. What he is doing is he is having a feeling of competition. Okay. Right. Doctor, if you allow me, Huh. I'll say it is more a ego problem. Exactly. That how somebody could overtake me, Hmm. and perhaps he must come to know that there is another person Hmm. who is in the capacity to overtake him again and again. Exactly. So somewhere competition plus ego problem. Competition. See, I would say if you define ego, Huh. these are all the manifestations of ego. Yes. Avoidance is also some manifestation of ego. Yes. Yes. Anger also is some manifestation of Exactly. ego. You are absolutely right. Competition is also another way of manifestation of the ego. Right. Another could be that, okay, pull him out and you have to beat him. Yeah. The road rage which we see every day. Yeah. Right. Which means he has a feeling of taking revenge in the given situation. Yes. Yes. Now, why I did give this example? Hmm. Because normally when people come to me for the first time and we say we do take the details of the case, Yeah. most of the people say that for my behavior, I am not responsible. Hmm. Other people are responsible for me because this person has he has overtaken me in a wrong manner. Yeah. That is why I behave like this. Right. Parents feel children behave like this. That is why I behave like this. Yes. External circumstances are like this. The life is challenging. That's why I behave like this. Now, my Yeah. question here is, if my behavior is only based on the external situations, then all these 4 people have encountered the same situation. Right. Then, going by the logic, all the 4 should have reacted similarly. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल. क्यों अलग अलग बिहेव हो रहा है? इसका मतलब जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उसके अलावा भी कुछ है Yes. जो कि हमारे बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबल होता है, Yeah. राइट? और हम उसको बोल सकते हैं वो हमारी जैसे एक पर्सनैलिटी है. Yes. Yes. अब पर्सनैलिटी क्या होता है? एक दिन में तो नहीं बनती है. पर्सनैलिटी बोल सकते हैं जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है और आज तक जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबसे पर्सनैलिटी बनती है. Right. नाउ विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अब मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ जी. कि जहां पर बच्चे और पेरेंट्स के बिहेवियर के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जी, वो जी. कहाँ हैं? वो सिर्फ ये है क्योंकि दोनों के अपने एक्सपीरियंसेस अलग हैं, Yeah. दोनों की अपनी पर्सनालिटीज अलग हैं, दोनों की अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं. इसलिए दोनों का जो बिहेवियर है वो अपने हिसाब से ठीक है लेकिन दूसरे के हिसाब से डिफरेंट है. ठीक. और प्रॉब्लम हम लोगों में कहाँ आती है? प्रॉब्लम यही आती है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, Right. हम अपने आप को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं. और जहां दूसरा इंसान मेरे से डिफरेंट बिहेव करता है, मेरे से डिफरेंट सोचता है, हम उसको गलत बोल देते हैं. हम बहुत जल्दी दूसरे के बिहेवियर के लिए जज बन जाते हैं. Right. यश, you are in a teenage. हम ये सुनना चाहेंगे आपसे कि पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप में जो डॉक्टर साहब ने वक्तव्य दिया है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मेनली सर आज के टाइम पे वी सी दैट पेरेंट्स एंड जो उनके बच्चे हैं दे हैव वेरी लेस इंटरेक्शन यस. बिटवीन ईच अदर.
एंड बेसिकली हम अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं, वी आर सेल्फ आर सो बिजी इन आवर लाइफ एंड वी डोंट गेट टाइम फॉर देम, एंड इवन इन दे आर सो मच बिजी टू गिव अस अ लाइफ, सो वी डोंट टॉक टू ईच अदर, दैट क्रिएट्स अ गैप, जिससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आजकल होने लग गई। तो आई फील पहले फिर भी लोग बात कर लेते थे, आज के टाइम पे तो बातचीत है ही नहीं। एंड बेसिकली जब भी कोई फाइट या कुछ भी होती है तो आई वुड से पहले ही होता था कि बच्चे गलत होते हैं, आज के डेट पे पेरेंट्स भी कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो उस फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि अर्निंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो भी कुछ गलतियां कर देते हैं, बट दे आर नॉट इन दैट स्टेट टू अंडरस्टैंड दैट, तो इसलिए हम भी उतने ओपन नहीं हो पाते उनके सामने। बट व्हेन वी गेट एनी टाइम टू टेल देम, तो दैट क्रिएट्स अ फाइट। सो आई फील जो भी आपने ये चीज़ बताई, आज की डेट में आई गेस ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी एंड आगे आगे बढ़ेगी। अभी हमारे जनरेशन के बच्चे भी थोड़े हैं जिनको वैल्यूज हैं कि कितना आपको रिस्पेक्ट देनी आगे जाके, बट आई गेस जब हम भी आगे अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है वो चीज़ भी कम ही होने वाली है बच्चों। लोग सब, मैं यश से पूरी तरह सहमत हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ। एक तो पहले समय में संयुक्त परिवार में बच्चे रहते थे, बच्चों की संख्या भी ज्यादा रहती थी। आजकल मैक्सिमम 2 या 1 बच्चा रहता है। रिजल्ट ये है कि एक परिवार से एलिमिनेशन बनी रहती है। कारण ये है हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, now child is being brought up in such circumstances where maid servants have more role to play than the family members. उस सूरत में बच्चों का पेरेंट्स के प्रति इंटरेक्शन बहुत मिनिमल लेवल पर हो गया है, और उसके बाद भी पेरेंट्स की व्यस्तता ऐसी बनी रहती है कि वो बच्चों की जितनी भी इमोशनल नीड्स हैं उनको कैटर नहीं कर पाते, और रिजल्टेंटली बच्चा अपने आप में लोनली और एलोफ महसूस करता है। तो वन बिग रीजन एज यश इज पुटिंग अप इज द सर्कमस्टेंसेस इन विच द चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप, एंड हम ये भी नहीं कह सकते कि पेरेंट्स कसूरवार हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनको पूरी जॉब करनी है, दोनों अपनी अपनी जगह जॉब करते हैं, रिजल्टेंटली बहुत कम समय दे पाते हैं, जिससे कि बच्चों का जो EQ है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके, बढ़ पाए। उसके IQ को बढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ संसाधन जुड़ा के उसको मदद कर देते हैं, लेकिन EQ का जो वैक्यूम है वो उन बच्चों में बना रहता है। व्हाट डू यू से? डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ जी। प्राइमरीली मैं ये बोलता हूँ कि आपने जो कहा कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में व्यस्त हैं जी, ये लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है। या अगर हम इस जस्टिफिकेशन के साथ ही अपनी सोच रखेंगे, हाँ जी, तो बदलाव नहीं लाया जा सकता। आई एम सॉरी टू डिफर फ्रॉम यू। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रहा था कि आप इसको डिस्टिंक्शन करें, हाँ, क्योंकि हल तो तभी होगा ना कि अगर हम इस सोच से बाहर निकलेंगे और अपने आप को सिर्फ ये जस्टिफाई करते हुए एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो फिर तो कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम वही है। बच्चे, मेरे पास जब चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप केसेस आते हैं, मैं पेरेंट्स से अलग बात करता हूँ। जी, पेरेंट्स का अपनी नजर में बिहेवियर बिल्कुल जस्टिफाइड है। हाँ, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, जी, बच्चों का बिहेवियर अपने हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब पॉइंट ये है, अगर दोनों जस्टिफाइड हैं और दोनों सही हैं, तो झगड़ा क्यों? यस, हमें उस पॉइंट को हमें इसमें एड्रेस करना है। हाँ, राइट। परिवार पहले संयुक्त परिवार थे, आज अलग हैं, बच्चे कम हैं, छोटा है, ये एक रीजन आया है, लेकिन इसको अब हम बदल नहीं सकते। हाँ, we have to meet out। हाँ, हमें Yes। उसके साथ अपने आप को ट्यूनिंग करनी है, अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से अपने आप को एक ट्यूनिंग करनी है। राइट। जैसा एक उन्होंने बात बोली कि पेरेंट्स जो है गलत हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे गलती करते हैं। देखो, एक चीज समझो, ये गलती की डेफिनेशन क्या है?
अगर हम लॉ के को प्राइमरी मान के चलें तो वहाँ तो अगर हम किसी एडवोकेट से, किसी पुलिसमैन से पूछते हैं कि जिन दुनिया में गलत क्या है, उनके पास आंसर आसान है, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल बुक है, जो उस रूल बुक को फॉलो नहीं कर रहा है वो गलत है, राइट। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स गलत हैं या हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे गलत हैं, देखो डोंट गो ऑन माई वाइट हेयर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट्स का एडवोकेट बन के बात कर रहा हूँ, नहीं। व्हेन आई टॉक फॉर अ चाइल्ड आई रियली बिहेव लाइक अ चाइल्ड, ठीक है ना। तो जब हमें ये लगता है कि पेरेंट्स गलत हैं या पेरेंट्स को लगता है बच्चे गलत हैं, तो मैं ये पहले तो सवाल आपके ऊपर खुद डालना चाहता हूँ एंड टू ऑल माय ऑडियंस कि वो क्या बेंचमार्क है, कौन सी ऐसी रूल बुक है जिसके कंपेयर करके हमें डिक्लेयर करते हैं कि दूसरा इंसान गलत है। ठीक है, इसमें सर एक ऐड कर सकता हूँ। हाँ, आप बोलिए। इस चीज में तब पहुंचते हो जब आपको घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पे भरोसा होने लगता है। एंड वो इस क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी मन की बातें हैं, आपके मन में एक डर बैठ जाता है, हम कुछ भी बोलेंगे हमें डांट ही मिलेगी। अब उस डर से हम कई बार चीजें बोलते नहीं। अब वो चीज अपने आप को लेट डाउन करने के लिए अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर हम कॉलेज जा रहे हैं, हम अपने दोस्तों से लेट डाउन करते हैं, वो हमें उस चीज में गाइड करते हैं। तो हमें वो चीज अच्छी क्यों लगती है, दे आर गाइडिंग अस। एग्जैक्टली। एंड जो घर पे हो जाता है, अब वो अपनी उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो ऑफिस से मिलती है कहीं से, वो डांट में तब्दील हो जाती है। अब इस वजह से भी फील कि हमें समझ तो लो, वहां भी डिक्लेयर कि ये गलत है। एग्जैक्टली। सो पॉइंट क्या हुआ कि हमने किसको रेफरेंस माना गलती डिसाइड करने का, हमने अपने बिहेवियर को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अगर पेरेंट्स मेरी तरह से बिहेव नहीं करते, अगर बच्चे मेरी तरह से मेरे सोच के हिसाब से बिहेव नहीं करते, तो वो गलत है। अब सवाल ये आता है कि कहां तक आपकी सोच सही है जी, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट तो नहीं है, हम बोल सकते हैं जी सही गलत कोई बात ही नहीं है जी, लिखा है तो आप रहते हैं देश में तो फॉलो करना है, नहीं। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम फिर जब हम दूसरे को गलत जब हम समझने की कोशिश करने लगते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसा इन्होंने यश ने बिल्कुल सही कहा कि जब हमें लगता है कि सामने वाला एज पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम वहां से कम्युनिकेशन खत्म करना शुरू कर देते हैं, राइट। यहाँ पर मेरा एक जो सजेशन है वो मैं ये देना चाहता हूँ सभी को कि हम, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बहुत प्राइमरी एग्जाम्पल है कि 4 लोगों ने एक ही चीज को विटनेस किया और अलग अलग बिहेव किया। और सोचिए, थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिए कि एक जो इंसान इस सिचुएशन में गुस्सा कर रहा है, क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं तो कुछ गलत काम कर रहा हूं? नहीं, उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, राइट। जो इंसान इस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है, क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं तो कुछ गलत कर रहा हूं? रादर उसको ये लगता है कि अवॉइड जो नहीं कर रहे वो गलत है, वो गलत। और रादर मैंने यहां तक भी देखा है, वो ओवरटेक करने वाला तो निकल चुका होता है, अब ये गाड़ी में जो 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, वो झगड़ा करते हैं। इस सिचुएशन में गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और वो जस्टिफाई करता है कि ऐसे अवॉइड करते चले जाओगे तो कोई भी आके हमें तो कुछ भी कह के चला जाएगा। आर वी अ पीपल और वी आर पर्सन विदाउट अ बैकबोन? यस। सो पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान के, क्योंकि पर्सनालिटी अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसका जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम इस चीज को भी लाइफ में समझ लें तो हमें फिर क्या होता है, हमें दूसरे के विचारों को, चाहे वो हमसे डिफरेंट भी हैं, उनको समझने के लिए हमारे मन में एक ओपननेस होती है। yes. जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की कॉफी कैसी है, और आपका सबसे पहला जवाब आता है कि हाँ, ये ब्रांड की कॉफी जो है ये अच्छी है जी। इसका मतलब जो ये बोलेगा कि ये अच्छी नहीं है, हमें लगेगा ये इंसान जो है ये तो समाज में रहने लायक ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई मीन आई हैव नो बैड फीलिंग्स फॉर स्टारबक, बट देन बहुत साल पहले जब स्टारबक इंडिया में आया था, वन ऑफ माय colleagues was there and then she actually had stayed lot of time in US and then came. और हम लोग जब फर्स्ट टाइम स्टारबक गए and then she said, "Oh my God, Starbucks has come in India also." She was so super excited. मैंने नाम नहीं सुना था, मेरे लिए नॉर्मल था, ठीक है, कॉफी पीनी थी, गए हम लोग, कॉफी पी। Then she said कि आपको कैसी लगी? मैं छोड़ो, काम के लिए चल रहे हैं वहीं चलते हैं। नहीं, आप बताओ कैसी है। ऐसा है कि तो मेरे लिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, दूसरी चीज मेरे लिए वो बहुत कड़वी थी, राइट, बिकॉज वो मेरे टेस्ट से ठीक नहीं थी। एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय फीडबैक एंड शी वाज सेइंग कि ये बंदा है क्या, गांव से देहात से आ गया, इसको पता भी है स्टारबक की कॉफी क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये।
सो पॉइंट ये होता है कि जो हमारे हिसाब से नहीं सोचता है Yes. हम उसको इमीडिएटली एक जजमेंट पास करते हैं कि वो गलत है Yeah. विदाउट ये जानते हुए कि जिस पैरामीटर से हम इवेल्युएट कर रहे हैं सही या गलत वो पैरामीटर का ही कोई ऑथेंटिसिटी अपने आप में नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अच्छे से इस उदाहरण से बात समझाई, बट कमिंग बैक टू द ट्रैक, ये जो पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप है, एक तो ये ओकेजनल अफेयर नहीं है, दिस इज ए रेगुलर डेली अफेयर, वन। सेकेंडली, एक फिक्स्ड ओपिनियन पेरेंट्स भी बना लेते हैं और एक फिक्स्ड ओपिनियन बच्चे भी पेरेंट्स के लिए बना लेते हैं। सपोजिंग अगर बीइंग चाइल्ड आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझना ही नहीं है, तो धीरे धीरे मैं उस स्टेज पे आ जाता हूँ, मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक फिक्स्ड ओपिनियन बन गया कि भाई ये मुझे नहीं समझ सकते। तो मेरा लेट आउट पेरेंट्स को छोड़कर बाकी कहीं भी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ या किसी टीचर के साथ होना शुरू हो जाता है और पेरेंट्स के प्रति मेरा जो एटीट्यूड है वो बड़े क्लोज माइंड का हो जाता है। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। प्लीज कमेंट ऑन दिस कि ऐसा अगर है तो इसको खत्म करने का क्या तरीका? इसमें सर एक ऐड भी मैं करना चाहूँगा इसी क्वेश्चन से ही आगे, तभी आप एक बार बताइएगा कि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हर दूसरे Yes, में है। yes. पहले जॉइंट होती थी, आज भी होती हैं, बट काफ़ी रेयर आपको ये मिलेगा। मैक्सिमम मॉम डैड बच्चा, या अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो वो, इतनी ही फैमिली रह जाती है। रिलेटिव्स को भी आजकल इतने लोग नहीं पूछते। तो बेसिकली जब इतने में रहते हैं, जब मॉम डैड नहीं है, दैट भी अगर मॉम हाउसवाइफ है तो अलग सिचुएशन है। अगर वो दोनों जॉब पे है एंड द चाइल्ड इज अलोन एट होम, तो लोनलीनेस जैसे सर ने बताया वो चीज़ होती है। जब ये समझने का कॉन्सेप्ट हट जाता है, देन भी आजकल ही बड़ा शुरू हो गया, हम पीजी ले लेते हैं, हम अलग से 1 आवर के फ्लैट लेके रह लेते हैं या वो चीज़ कर लेते हैं। अब वो चीज़, और फैमिलीज भी जब पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपको यही ऑप्शन देते हैं, तुझे दिक्कत हो रही है तू पीजी ले ले, तू उधर चला जाए, या तू ये कर ले, तू व्हीकल ले ले, पैसे ले ले। एंड ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल लगता है वैसे दे दो तो बच्चे चुप हो जाएंगे। इट्स बेटर कि आप पैसे की जगह इमोशंस को ज़्यादा ध्यान रखें, तो आई वुड से। बट जब ये पीजी हॉस्टल जैसी चीज़ में आते हैं, टोटल कट ऑफ हो जाता है फैमिली से, देन यू डोंट नो कि आपके अपने घर में ही क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम कैसे समझाएं कि ये क्यों आ रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों बच्चा घर से बाहर रहना चाहता है, घर में नहीं रहना चाहता, क्यों ऐसा, और उस माहौल में कोई ध्यान भी नहीं देता। लेट इट बी एनीवन। अगर मैं अपने पर्सनल घर की बात करूं, जनरली हमें टाइम नहीं मिलता आपस में बात करने का, क्योंकि व्हेन आई एम होम माय डैड इज नॉट होम, व्हेन ही इज होम देन आई एम नॉट होम। अभी वो घर है तो मैं यहाँ हूँ, मैं घर चला जाऊंगा तो ही विल गो फॉर अ मैच। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। मॉम भी अभी ओवरनाइट ऑफिस रहेंगी, तो उस चीज़ से कैसे निकलें, एंड हाउ वी शुड टेल आवर फैमिली मेम्बर्स कि काम अपनी जगह है, बट जब प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो काम नहीं फैमिली होती है, तो उसको भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आज की टाइम में डेड हो चुकी है, इसको रीलिव कैसे करें? देखो, टाइम एक दूसरे के लिए आज नहीं है, आपने भी इसी पॉइंट के ऊपर बात किया था। मैं लेकिन ऐसे बोलता हूँ, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें जी जी, क्या सही में हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि टाइम नहीं है। आई एग्री विद यू। कैसे? एक बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए, बच्चे की एज होगी उस टाइम 11-12 साल की, और मदर का प्राइमरी कंप्लेंट ये थी कि बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर लगाता है। अब जब बच्चे से मैंने वर्जन पूछा तो बच्चे ने बोला कि अंकल आप ऐसा करना, रात को 2 बजे आप एक बार व्हाट्सअप अपना चेक करना, आपको मेरी मम्मी रात को 2 बजे भी ऑनलाइन मिलेगी। ओके। ना पेरेंट्स से मैं जब पूछता हूँ इस बारे में कि आप भी तो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनका कहना है अभी हमारा देखो करियर बन चुका है, ऑफिस से आते हैं, हमें कुछ और नहीं है करने के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसका तो अभी करियर बनना है। मैं उनको ये बोलता हूँ, आप अपना लीड बाय एग्जाम्पल। एक जो बच्चा है छोटा, वो ये नहीं समझता है, वो ये देखता है कि पेरेंट्स का जब खाली समय होता है वो अपना टाइम मोबाइल पे लगाते हैं, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे आप
सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की नज़र से देखें, उसको अभी इतना समझ नहीं है कि आप अपना कैरियर आपका बन चुका है, आपकी एक रेगुलर इनकम आपकी आ रही है, आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आपके वर्चुअली करने को नहीं है और आप बैठकर मोबाइल पे टाइम देखते हैं। बच्चा ये देख रहा है कि खाली टाइम में पेरेंट्स मोबाइल देखते हैं और मुझे जब मैं मोबाइल देखता हूं तो मुझे वो रोका टोकी करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग दे आर नॉट प्रीचिंग, व्हाट दे आर प्रीचिंग दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, वो ये है, इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। यस। अगर बच्चे आपका अच्छे से बिहेव करता है, बच्चा आपके साथ बुरा बिहेव करता है, एग्रेसिव है, डिप्रेसिव है, चाहे वो आपके साथ अब्यूजिव भी है, इवन मैं यहां तक बोलता हूं कि अगर बच्चा सुसाइड भी कमिट करता है, ये भी आज समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस। अगर बच्चा सुसाइड भी कमिट करता है तो जाने अनजाने में पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फर्स्ट सेशन के अंदर जब पेरेंट्स आते हैं, वो जिस तरीके से नरेट करते हैं अपनी डिटेल्स को, एज इफ द चाइल्ड इज द कल्प्रिट। बट आई से एक बच्चा जब पैदा हुआ वो एक कोरी स्लेट की तरह, व्हाइट पेपर की तरह से आपके पास पैदा हुआ था। जो लिखा है प्राइमरीली आप ही ने लिखा है। और आज आप बोलते हो कि आपने जो अक्षर उस पर लिखे हैं आज आपको वही पढ़ने लायक नहीं लग रहे हैं, एंड यू से दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्लेट। आई मीन आई डोंट गेट सेटिस्फाइड बाय दिस। सो प्राइमरीली मैं यहां तक भी बोलता हूं कि हम लोगों की कुछ भी एज हो गई है, आज अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो वो क्रेडिट भी हमारे पेरेंट्स पर जाता है। अगर आज हम फेल हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, अगर हम डिप्रेसिव हैं, तो भी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स पर ही जाती है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि एज पेरेंट्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एज चाइल्ड हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये एक वन अप वन डाउन रिलेशनशिप रहता है। गिविंग दीज टू सिचुएशंस जो आपने सोशल मीडिया का बोला कि लगे रहते हैं, तो इफ आई गिव यू टू सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल देयर आर टू फैमिलीज। अब एक फैमिली है कि जब वो फ्री हैं, दे सिट विद देयर चाइल्ड, दे टॉक अबाउट द डे, हाउ वाज योर डे, कहाँ चलना है, क्या करना है, लेट्स प्लान आउट सम आउटिंग और समथिंग। दूसरी तरफ ये है, 3 लोग हैं परिवार में और 3 लोग अपने कमरे में बैठ के, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई अपनी वीडियो बना रहा है। तो ये चीज, अब ये 2 फैमिलीज हैं। ज्यादा अगर आप ये सुसाइड की बात करें तो ये चीज उसमें आएगी जो तीनों अलग रूम में बैठे हैं, क्योंकि दूसरा बंदा क्या कर रहा है रूम में हमें नहीं पता, बट जो साथ बैठे हैं दे नो कि यार अगर इसको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, ये हमें आके सबसे पहले बताएगा, या कोई भी चीज है, और वो फ्रेंडशिपनेस नहीं आती। ठीक है, प्रैक्टिकली जनरली 90% ऑफ जो बच्चे सारे अपने अलग ही रहते हैं, एट भी वो किसी भी एज ग्रुप के हो। मैं सबसे छोटों की बात नहीं कर रहा, टीनेजर्स, उनसे ही बड़े 24-25 साल के, वो सारे, एंड फैमिली से ज्यादा दोस्तों को इंपॉर्टेंस देने वाले, क्योंकि वो फोन पे हैं, फ्रेंड्स आर ऑन द फोन, पेरेंट्स आर इन द रियल लाइफ जो आप सामने देख रहे हैं। अच्छा, कई बार हम जब सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हैं तो वी आर जज्ड ऑन दैट बाय पेरेंट्स। ठीक है, लेट इट बी कि हमने कुछ यश, आई विल स्टॉप यू हियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बात की और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर इस पॉइंट पर आते हैं। बिकॉज यू आर अ चाइल्ड, है ना, आप टीनेजर, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, यू आर अ टीनेजर, तो हम ये देखते हैं कि मैंने अभी जो कहा उससे ऐसा लग सकता है ऑडियंस को कि फिर बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। नहीं, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ टीनेजर, लेट मी रिप्लाई कि इस सिचुएशन में बच्चे क्या कर सकते हैं। यस, राइट, बिकॉज अगर आपका सवाल होता तो मैं डिफरेंट तरीके से आपको मैं बोलता। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ टीनेजर कि अब बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि पेरेंट्स को समझने की अगर हम एज टीनेजर अगर हम कोशिश करें, एक चीज देखिए, क्या कोई भी टीनेजर ऐसा है जो कि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है? हम चाहते हैं सक्सेसफुल, हम चाहते हैं हेल्दी रहना भी चाहते हैं, हम हैप्पी भी रहना चाहते हैं, राइट? अब अगर मैं पूछूं आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हों, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं आप लाइफ में हेल्दी हो, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं आप लाइफ में खुश हो। यानी अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे देखें, मकसद दोनों का एक ही, मकसद दोनों का एक ही है, दोनों की इंटेंशंस एक ही है। फिर झगड़ा क्यों? हस्बैंड वाइफ में समझ में आता है कि हस्बैंड चाहता है कि मेरे फायदे की चीजें हो, वाइफ बोलती है मेरे फायदे की चीजें हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइल्ड पेरेंट में कॉन्फ्लिक्ट कोई एग्जैक्टली है ही नहीं, क्योंकि बच्चा भी सक्सेस, हैप्पी, हेल्थ चाहता है, पेरेंट्स भी इस बच्चे को ही सक्सेसफुल, हेल्दी और हैप्पी बनाना चाहते हैं, चाहे वो
अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो भी बच्चे की हेल्थ, बच्चे की हैप्पीनेस, बच्चे की सक्सेस के लिए ही काम करते हैं। तो इंटेंशंस तो सेम है। तो पहले तो मैं हर टीनेजर को ये बोलता हूँ कि पेरेंट्स के बिहेवियर से ज्यादा उनके इंटेंशंस को पकड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम बच्चे कर सकते हैं ये समझ सकते हैं कि हमारा जो तरीका है सक्सेसफुल बनने का, हैप्पी बनने का, वो शायद डिफरेंट है। पेरेंट्स जिस तरीके से बोलना चाहते हैं वो शायद डिफरेंट है। तो यहाँ इंटेंशन सेम है लेकिन शायद तरीके का कुछ एक अंतर हो सकता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चों को प्यार करता है। अगर पेरेंट्स बच्चों को प्यार ना करें तो इतने टेंट्रम्स बच्चों के नहीं उठाएंगे। आप अपनी लाइफ में देखिए, आज आप टीनेजर भी हैं, आप ही देखिए अपनी लाइफ में कितने लोग ऐसे जिनके टेंट्रम्स आप उठाते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के टेंट्रम्स आप उठाने को तैयार नहीं है, राइट। यू नो। एंड ऐसा नहीं कि मैं टीनेज में जब बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड्स में उनको एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास 13 साल की एज में पहले ब्रेकअप का केस आया हुआ है, राइट। सो आप देखिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के कितने टेंट्रम्स उठाते हैं, उतने नहीं उठाते हैं जितने कि पेरेंट्स आपके टेंट्रम्स उठाने के लिए तैयार हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लव दैट दे हैव फॉर यू। हाँ, ये अलग बात है कि उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता है कि आप फील कर पाए कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको डोमिनेट करते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा टू टीनेजर्स कि अगर हम बच्चे पेरेंट्स की इमोशंस को देखें, उनका मन में कहीं ना कहीं प्यार है। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। आज कंपटीशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना। तो उनके मन में एक फियर है कि अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं बन पाया तो उसको जो लाइफ की जो क्वालिटी है, जो लाइफ का जो एक स्टेटस है, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये जो फियर है, दिस फियर इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ लव फॉर यू। आपके पेरेंट्स आपके पड़ोसी के लिए तो ऐसा नहीं सोचते। वो भी चाहते हैं कि ठीक है वो भी बच्चा अच्छा बने, लेकिन क्योंकि उसके सक्सेस के लिए उनके मन में फियर नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। तो बच्चों से मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से अगर हम पेरेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। But the kids who complain not getting support in their hobbies, in their जो उनको extra curricular activities करनी है, तो how to convince that? अगर एक बच्चा 5th class में, 6th class में, like if I tell an incident, बहुत टाइम पहले मैं एक शो के लिए गया था in my school on occasion was, तो तब after my show completed, it was Shankar Ehsaan Loy show, and there a kid came to me कि मुझे singing करनी है, आपकी तरह करनी है, and I want to do something big in this industry. तो बट मेरे डैड मुझे थप्पड़ मार के चुप करा देते हैं whenever I talk about this, या मुझे सीखना है, या मुझे मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पापा नहीं मान रहे तो हम तुम्हें कुछ ऐसे करने देंगे, पढ़ाई करो। तो जो एक फोर्समेंट आ जाती है पढ़ाई की, बट उसको वो चीज़ करनी नहीं है। बहुत ऐसी इंडस्ट्री में लोग हैं जो इतना इंजीनियरिंग वगैरह करके भी वो एक्टिंग कर रहे हैं या वो सिंगिंग कर रहे हैं। तो वो पहले से ही सपोर्ट कैसे कन्विंस करा जाए कि प्लीज़ आप हमें वो चीज़ अलाउ कर दीजिए, क्या पता उसमें हमारा फ्यूचर बने, जो आप बनवाना चाह रहे हो उसमें हम फेल हो जाए। देखो, फ्यूचर किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा ये प्रेजेंट में तो डिसाइड नहीं हो सकता। मैंने वही कहा, सक्सेसफुल दोनों होना चाहते हैं। बच्चा भी सक्सेसफुल होना चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। सिर्फ इशू ये है, पेरेंट्स को शायद लगता है कि मेरा बच्चा अगर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चा वो एग्जांपल्स लेके आता है कि इतने इंजीनियर्स भी कौन सा अच्छी जॉब कर रहे हैं, इतने डॉक्टर्स हैं जिनकी क्लिनिक पे कोई पेशेंट भी नहीं आता है, और म्यूजिशियंस भी इतने सक्सेसफुल हैं। पॉइंट सिर्फ वही है कि जहां हम रास्ते हमारे जो सक्सेस के हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। यश, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, आमतौर पर रेलवेज में या बसेस पे एक बात लिखी मिलती है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। जिस बात को हम डील कर रहे हैं यहाँ पर, सवारी स्वयं भी जिम्मेदार है और उनका ये फर्ज भी बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को ये समझाएं कि आपकी जो एडवाइस है ये हमने अपने पल्ले बांध ली है, हम अपने शौक को भी फॉलो करेंगे और साथ साथ अपने करियर को भी ध्यान में रखेंगे। आप एक बात बताएं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों की हॉबीज को
या उनके पैशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर एक यंग अमीर बच्चा टीन एज में ही बॉम्बे भाग जाना चाहता है क्योंकि वो फिल्मों में काम करना है, और पेरेंट्स ये कहते हैं भाई तुम कोई डिग्री ले लो, कोई कैरियर का बेस बना लो, ताकि कल को अगर वहां पर आप सफल ना हो तो आप यू कैन फॉल बैक अपॉन सम कैरियर, तो कोई हर्ज नहीं है। तो मूलतः मेरा ये मानना है कि सवारी अपने सामान को खुद भी संभाले और ये बताए भी कि भाई मैंने संभाल लिया है, अब आप मेरी चिंता मत करो, तो ये क्लैशेस कम हो सकते। क्या कहते हैं दोस्त? मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ जी। मैं यश का वर्जन जानना चाहता हूँ क्योंकि हाँ। शायद ये अभी सेटिस्फाइड ना हुए हों। फील फ्री, जो भी आपके मन में है। हाँ। नहीं, बेसिकली सर वही होता है। हम मतलब हॉबीज के लिए जैसे सर ने ये चॉइस दे दी कि आप कुछ डिग्री ले लो, पर फिर आप अगर बाई चांस वहाँ जाते हो अपना जो भी हॉबी के लिए तुम जाते हो, बट वहाँ फेल हो गए तो तुम कहीं पे स्टैंड हो सकते हो। Yes. अगर उस चीज के लिए तैयारी की अलाउंस ही ना दी जाए Yeah. पढ़ाई के हाँ, साथ, फिर जाती है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो हाँ। जाएगी? तो वहाँ पे आप कैसे समझाओगे कि ठीक है आपने बोला मैंने साइंस ले ली, एटलीस्ट मुझे एक संडे दे दो मेरे काम के लिए, संडे को भी आप मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स मत करो। तो वो चीज कैसे समझाएगी? ये सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। हाँ, मैं वो मुझे लग रहा था आपको हाँ। शायद पूरे सेटिस्फाइड। देखो एक चीज ऐसे समझो कि चलो दो वर्ड्स होते हैं, एक हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बात करते हैं फ्रीडम। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने और बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको फ्रीडम दें। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है। आप चाहते हैं वो मेरी लाइफ में मुझे फ्रीडम मिले, और पेरेंट्स चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल बने। यही दोनों में अंतर है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं या सेम है? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट हिज व्यू। ही सेज कि मैं 6 दिन पेरेंट्स के हिसाब से काम करने को तैयार हूँ कैरियर के पॉइंट। एक दिन मैं मांगता हूँ अपने टेस्ट को, हॉबीज को परसू करने के लिए, और उसके लिए भी अगर मुझे मेरे पेरेंट्स समय उसी ना पर आ रहा हूँ, उसी हाँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, हाँ। उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने वो 6 दिन क्या सही में दिए हैं अपने सक्सेस के लिए, वहां मेरा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस। अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाएं तो फ्रीडम आपको ऑटोमेटिकली मिल मिलेगी। जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक दिन चाहते हैं अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए। प्रॉब्लम यहां है कि बाकी के 6 दिन में जो आप क्वालिटी डिमॉन्स्ट्रेट करा रहे हैं, Yes. दैट इज नॉट एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। Yeah. हमने साइंस ले ली, लेकिन वो 6 दिन हम क्या करते हैं? ना हम मार्क्स अच्छे ला पा रहे हैं, ना हमें कोई नॉलेज आ पा रही है, ना हम उन 6 दिनों में उतनी डेडिकेशन शो कर पाते हैं पढ़ाई के लिए जितनी कि हम उस एक पर्टिकुलर डे में अपनी हॉबी पर डेडिकेशन शो कर रहे हैं। सो पेरेंट्स को क्या लगने लगता है कि ये जो है, ये अभी भी उसका फोकस वहीं पर है। इसलिए मैं सारे आंसर्स ना मैं एक्चुअली टीनेज के पर्सपेक्टिव से ही देने की कोशिश कर रहा हूं आज। हम क्या देखो, लाइफ में बहुत कुछ है जो दूसरा गलत कर रहा है, पेरेंट्स भी बहुत कुछ है जो गलत कर रहे हैं। आई कैन गिव यू अ ब्लैंकेट कवरेज फॉर दैट, नॉट एन इश्यू, बट पॉइंट इज हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमें ये देखना है। आप जिस दिन, जब आपको एक दिन अगर आप अपनी हॉबीज के लिए 100% मांगते हैं, तो आप ये देखिए कि वो जो बाकी के 6 दिन हैं, अगर आपने उसमें अपनी पढ़ाई को ठीक से किया है, अगर आपकी वहां पर ग्रोथ अच्छी है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि हर पेरेंट वो 7वां दिन आपको आपकी मर्जी से जीने के लिए दे देगा। यस। मैं यश, जो डॉक्टर साहब ने कहा है, टेकिंग दैट एस्पेक्ट इन माइंड, आई वुड लाइक टू टच वन वेरी करंट इशू which is very prevalent nowadays. श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स की बात को नहीं माना।
आप क्या समझते हैं कि उसके पेरेंट्स उसको सेटल नहीं करना चाहते थे? वो ये नहीं चाहते थे कि ये खुशहाल रहे और अपनी गृहस्थी प्रॉपरली अडॉप्ट करे, लेकिन क्योंकि उसने उस बात को नहीं समझा और बियॉन्ड देयर डिसीजन शी टुक हर ओन व्यू पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो लड़की जो पेरेंट्स की बात नहीं मानती उसका यही अक्षर होता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स हैव बेटर फार साइटेडनेस देन द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो मोटे तौर पर मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स की राय में अपनी राय मिला के रास्ता ढूंढना is a better solution for teenagers as well as for young persons. Does it answer your question, Yash? Yes. क्योंकि हम अगर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर हम उनको सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं Yes. तो हमें फ्रीडम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. And manipulating your family in according to the other people who are living around you, I don't think that's right. Obviously it is not right. Obviously it is not But right. it is done. ठीक है, देखो एक चीज समझो, मतलब मैं उससे मेनली ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जो होते हैं उनको ये होता है कि उनका लड़का ये कर रहा है तो हमारा भी ये करे, तो वो एक दबाव हमारे पेरेंट्स पे डाला जाता है और वो पेरेंट्स से हम पे डाला जाता है. Right. मैं देखो मैं कंपटीशन हो जाता है मैं एक ही मोहल्ले में. मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स की तरफ से भी गलत हैं, मैं वो इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप टीनेजर हैं, अगर मैं सारी गलतियां पेरेंट्स की ही बता दूं तो आपको कोई भी इस हम जितना भी टाइम अभी हम बात कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी टेक अवेज नहीं मिलेंगे. इसलिए मैं चीज़ों को फ्रॉम अ टीनेजर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ. कभी हम एक सेशन प्लान करेंगे जिसमें हम फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव मैं गलती नहीं बोलूंगा. हाँ, आई वुड हाँ. नॉट कॉल दिस पेरेंट्स फॉल्ट. ये बोलूंगा दबाव हाँ जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलता है. मैं वही बोला, पर्सनैलिटी का मैंने क्यों सबसे पहले एक्सप्लेन किया. भाई तो वो हमारे लिए चाहे ना करना चाहते हो बट जो घर के बड़े हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते. हमारे मॉम डैड तो वो उस चीज में बोलते हैं तो दे आर नॉट रॉन्ग, बट उस चीज को अब खत्म नहीं कर सकते. वी कैन नॉट फाइट विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप अपने पेरेंट्स को फिर भी एक हद तक समझा सकते हो, और जो और ओल्ड एज है उनको आप नहीं समझा सकते. उनका एक थॉट प्रोसेस सेट है कि ये करना है तभी फ्यूचर बनेगा, नहीं बनेगा. वो चीज नहीं समझा सकते, राइट. बट हाँ, बट ये और जो लोगों के हिसाब से चलने की प्रॉब्लम है. दूसरा एक और बात बोलता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है, अब आप जो हैं इतने छोटे तो नहीं हैं कि आप सिर्फ स्कूल जाते हैं, अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं. आप ये देखिए, डू यू थिंक कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस? क्या सब लोग जिन लोगों से आप लोग बात करते हैं, क्या वो सब आपके हिसाब से सोचते, आपके हिसाब से बिहेव करते हैं? तो मैं ये बोलता हूँ टीनेजर्स को कि अगर पेरेंट्स आपके हिसाब से सपोर्ट नहीं करते, आपको नहीं समझते, मैं ये बोलता हूँ इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग Yes. टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. आपका बॉस जो मिलेगा, क्या आपको लगता है आपका बॉस आपकी बात को समझेगा? Not all the time. क्या आपकी गर्लफ्रेंड जो मिलेगी, क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो आपकी बात को समझेगी? जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, और टीनेज एक ऐसी एज है विच इज एन एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन्स. इस एज में हमें ये भी समझना है, पेरेंट्स गलत हैं मान लिया, लेकिन पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत नहीं है. Yes. देयर लव फॉर द चाइल्ड, वो कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं. वो Right. obvious. राइट. तो अगर हम पेरेंट्स की इमोशंस को समझें, उनके हम पास को समझें. मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ. एक फैमिली मेरे पास आई जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लेकिन बहुत सीनियर ऑफिसर ग्रेड में नहीं थे. Right. दोनों ने अपनी बहुत मेहनत करके और रिटायर हो गए. रिटायरमेंट में जो पैसा मिला दोनों ने अपना पीएफ विड्रॉ करके उन्होंने गुड़गांव में एक अच्छा मकान खरीद लिया. इन द मीन टाइम उनके जो बच्चे हैं उनको उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लिया और अच्छा बच्चों की Settle परवरिश हो गई, बच्चों को अच्छे से सेटल कर लिया. अब क्या होता है, अब झगड़ा यहाँ है कि अगर 1 किलो दूध एक्स्ट्रा लेके आना है तो वो जो मदर है वो मदर बोलेगी क्यों आप जो है पैसा वेस्ट करते.
बच्चे को लगता है 1 किलो दूध एक तो मैं आपके पैसे से ला नहीं रहा, पैसा मैं दे रहा हूँ, और ये भी नहीं कि ला के मैं खुद पी रहा हूँ, मैं दे तो पेरेंट्स को भी रहा ही। अब ये 1 किलो जो दूध लाने के लिए ये पेरेंट्स मुझे क्यों मना करते हैं? अब वहीं झगड़ा हो जाता है उसी चीज पे। अब इशू ये है कि पेरेंट्स जिस फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजरे हैं, अब देखिए एक मिडिल क्लास आदमी के लिए घर में फल खरीदना, दूध खरीदना, टैक्सी में जाना, ये बहुत मजबूरी हो तभी आदमी उन चीजों में खर्चता था, नहीं तो एक साइकोलॉजिकल ये था कि यार ये चीजें बड़ी महंगी हैं। आज ही मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आती है, दैट गर्ल इज अराउंड 40 years of age, उसके फादर 70 प्लस एज के होंगे। जब वो मेरे पास सेशन लेने आते हैं, रोज उनका सबसे पहले झगड़ा ये होता है, लड़की बोलती है कि पापा कैब कर लेते हैं, और वो फादर बोलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बस में चलते हैं। अब लड़की बोलती है कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो सारा दिन दौड़ भाग कर सकती हूँ, मैं अगर कैब बोल रही हूँ तो आपके लिए बोल रही हूँ, लेकिन वाई ही सेइंग कैब, क्योंकि वो जिस मेंटालिटी से जिस लाइफ से गुजरे हैं, उन्होंने वो फाइनेंशियल हार्डशिप्स देखी है। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स को समझना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि पेरेंट्स के जो फियर हैं उनका कोई ना कोई उनका रीजंस है, और जब हम उनके रीजंस को एड्रेस कर पाते हैं, जब उनके रीजंस को समझ पाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जो बिहेवियर है बिल्कुल सुपरफिशियल है ना। और पहला इंस्टीट्यूट है, कोई आपको लाइफ में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी बात को आपके हिसाब से समझेगा और आपके हिसाब से करने को तैयार होगा। $100 I think it is worth $100 thing which Dr. Saab has shared, कि अगर हम परिवार में इसको एक शिक्षण संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमें ऐसे सपोर्टिव और कंजीनियल एटमॉस्फेयर कहीं भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बात सारी समझ के सुन के मैं यश एक छोटी सी कहानी कोट करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम इसका निष्कर्ष दें। एक घुड़सवार रेगिस्तान से घोड़े पे दौड़ता आ रहा था। आगे चल के उसको लगा कि मेरा घोड़ा हांफने लगा है, उसको लगा कि इसको अगर पानी ना पिलाया गया तो ये गिर जाएगा। उसने देखा कि दूर एक किसान रहट चला रहा है और पानी उसमें इकट्ठा कर रहा है हौज में। वो उसके करीब गया और घोड़े को खोल के राहट के पास भेजा। जैसे ही घोड़ा पानी पीने लगा, राहट में जो टिक टिक की आवाज आ रही थी, उससे वो डर के पीछे हट जाता। घुड़सवार ने किसान से कहा कि भाई ये टिक टिक बंद कर ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। तो आगे से किसान ने कहा कि अगर मैं टिक टिक बंद कर दूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। आपको अपने घोड़े को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो टिक टिक को भी सुने और पानी भी। मेरा ये मानना है कि जीवन में चाहे नौजवान हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस जीवन रूपी रहट में टिक टिक तो चलती रहेगी। हमें उससे भी एडजस्ट करना है और पानी भी पीना है, तभी जीवन जो है वो आगे बढ़ता है और आगे आगे समस्याओं के हल भी होते हैं और समस्याएं भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आज के इस विषय पे आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी है और यश के माध्यम से नौजवानों के जहन में क्या प्रश्न उठते हैं वो भी हमने जाने और आपने बहुत खूबसूरती से इनका जवाब भी दिया। तो इन शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और कोई फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहें तो आप प्लीज बताइए। एक वार्निंग मैं देना चाहता हूँ। जी जी जी। क्या वार्निंग देना चाहता हूँ? ये वीडियो जो बन रहा है, ये जो डिस्कशन आज हुआ है जी, कोई भी पेरेंट जी अगर इसको सुन के अपने बच्चों को देता है जी तो बिल्कुल इनफेक्टिव है। ये बच्चों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, यानी जो भी इसको सुन रहा है वो ये देखे कि दिस वीडियो इज फॉर इम्प्रूविंग द चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप फ्रॉम द चाइल्ड साइड। ओके, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सारी ये आती है कि हम
बढ़िया बढ़िया बातों को हम बदल देते हैं, हम्म, है ना। जैसे आप देखें, भिखारी एक आएगा, वो बोलता है आप 1 रुपया दोगे तो 100, वो आपको 10 लाख देगा। हम्म, अब ये जो सूत्र बनाया गया था, ये हमारे शास्त्रों ने ये लोभ को एंटीडोट बनाया था कि दान जो है वो लोभ को खत्म करता है। लोभ जो है एक षट रिपु का पार्ट है। यस, अब हमने क्या किया, इसको हमने दूसरे को दान देने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया, हाँ, इसको हमने दूसरे से दान लेने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया। राइट। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो आज का जो डिस्कशन हुआ है, जी, जब आप जो भी सुन रहा है हम्म, वो ये देखे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करूं अपने रिलेशन Yes. को इम्प्रूव करने के लिए, Yes. ना कि मैं कैसे इन्हीं चीजों को अपने बच्चों से इम्प्लीमेंट करवाऊं अपने Right. साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो ये Right. सारी की सारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। शायद हम एक और आगे वीडियो बना सकते हैं जिसमें कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, यस, यस, उस पर्सपेक्टिव से हम अलग ले सकते हैं। दैट्स आई थिंक द वार्निंग और द फ्लैग दैट आई जस्ट वांटेड टू Right. रेज फॉर बेटर Right. इफेक्टिवनेस। डॉक्टर साहब, इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के साथ मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा इस बात को कि जब मैं नौजवान था तो मैं ये सोचा करता था कि मैं पूरे संसार को बदल दूं। Exactly. जब मैं बड़ा हुआ और देखा कि संसार तो मैं नहीं बदल सकता, तो मैंने तय किया कि मैं कम से कम अपने देश को बदल दूंगा। लेकिन वक्त बीता, देश बदला नहीं गया, तो मैंने तय किया कि अपने राज्य को बदलूंगा। वो भी कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने अंततः परिवार पर बात लाई कि मैं परिवार को बदल दूंगा। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो मैंने ये तय किया कि मैं स्वयं को बदलूंगा। और जब मैंने स्वयं को बदला तो मैंने देखा कि पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा समाज, पूरा परिवार बदल गया है। तो मोटे तौर पर जो बात आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी अपने अपने स्तर पर अपनी सोच को बदलना होगा। और जैसे ही वो सोच बदलेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया है। बिल्कुल। देखने की दृष्टि से ही सृष्टि है। इन सब शब्दों के साथ हम डॉक्टर साहब आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने समय निकाला और हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में आए और इस इशू पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एंड यश का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यश गॉट हिज आंसर्स। Yes.